Everyone, let's start. Last time we had discussed about the various life processes. Then we had started with nutrition, and we had discussed about various types of or modes of nutrition, that is autotrophic, heterotrophic. And आगे हम लोगों ने autotrophic nutrition में भी subdivision पढ़ा था, like chemoautotrophic, photoautotrophic. Then heterotrophs we had studied about symbiotic relationship, and we had studied about saprotrophs, है ना, holozoic, and everything we had discussed. Then we had studied about requirements of photosynthesis, like light and water, carbon dioxide. We studied about this compensation point. Then we were discussing about the fourth requirement of photosynthesis, that is chlorophyll pigment. Okay. Chlorophyll pigment is the main pigment that is required for photosynthesis. Apart from this chlorophyll pigment, various other pigments are also present that we are going to discuss about today. Okay. So let's start without wasting more time. If you have any doubt, just note it down in your notebook or somewhere, and I'll take all the doubts at the end of the lecture. Okay. Like 10 to 15 minutes, I'll take all the doubts. Are you able to hello? Is my voice clear, everyone? You're able to hear me, right? Yes, okay. Okay, so let's start. First of all, we had studied about the chlorophyll pigment last time. Okay, so we know chlorophyll pigment में there is one head, the other part is tail. Head part is known as tetrapyrrolic porphyrin, right? And a phytol tail. और जो central atom present होता है, that is magnesium. Okay. Now let us talk about the formula. आपसे पूछ सकते हैं, commonly asked question है this one. Yeah. So the formula for or you can say उसमें basically क्या atoms present होते हैं, कौन से molecules present होते हैं, किसका बना होता है, क्या क्या present होता है, right? So दोनों में if you will see chlorophyll A and chlorophyll B, both has CHONN, carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen. And we know chlorophyll है तो उसमें magnesium central atom present होगा ही. Okay. So basic difference कहाँ आ रहा है? H and O के numbers में देखो. H is 72 atoms of H are present here, and here 5 atoms of oxygen. यहाँ 70 है and 6 oxygen है. So this is the basic difference. Next difference is यहाँ R group present होता है, side chain present होती है. वो side chain in the case of chlorophyll A is CH3. Okay, methyl group present होता है. But in the case of chlorophyll B, aldehyde is present. In the case of chlorophyll B, aldehyde is present. Okay, so basic difference. Is my voice not clear? Some people are getting my voice clear. Some are saying that it is cracking in between. Those who are saying it is cracking in between, try to reconnect, bacha. Try to reconnect within the meeting. I will also reconnect. Okay.
yeah, the basic difference, one is the difference in the number of atoms that are present in chlorophyll A and chlorophyll B of hydrogen and oxygen. Okay, it is 72 and 5 and 70 and 6. This is the difference. Second difference is the alkyl group that is present. Here. R group that is present, sorry, the R group that is present in chlorophyll A is the methyl group, CH3. While in the case of chlorophyll B, it is aldehyde, HO. Okay, so you need to remember these two things. ये formula NTSE में पूछ सकते हैं. It can be asked in NTSE. Okay. Likewise, chlorophyll C is also there. Chlorophyll D is also there. Chlorophyll E is also present in some plants. Chlorophyll E. Okay. Then there is carotenes and xanthophylls. And carotene का formula is C40H56 and xanthophylls is C40H56 plus molecule of oxygen. So we can say this is the oxidized form of this carotene. Okay, you can say that. So ये formula basic formulas है that can be asked. तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा. Okay. Now, chlorophyll A and carotenes are universal pigments. Chlorophyll A and carotenes, these are universal pigments, means they are found in all the oxygen liberating cells. Wherever photosynthesis is occurring and oxygen is getting liberated, chlorophyll A and carotenes pigments will be present there. Chlorophyll A and carotenes उसमें होगा ही होगा. बाकी pigments differ कर सकते हैं, but these two pigments will be there. So these are universal pigments. Okay. Now कुछ colors and you need to remember. Chlorophyll A generally looks like blue green in color. Chlorophyll B yellow green. Xanthophylls yellow. Carotenoids yellow to yellowish orange. Okay. यहाँ पे पूरा theoretical है, ऐसे कुछ समझाने के लिए नहीं है. You need to remember these things, right? Chlorophyll A, general formula you need to remember: chlorophyll A, chlorophyll B, carotene and xanthophylls. Chlorophyll C, D, E का formula कोई आपसे नहीं पूछेगा. So ये दो and ये दोनों आपको याद रखना है. Okay? Then chlorophyll A and carotenes, these are universal pigments and will be present in all the photosynthetic organism that will be liberating oxygen molecule. Okay. Again, chlorophyll A, chlorophyll B, blue green to yellow green in color. Xanthophylls yellow and carotenoid will be yellowish, orangish in yellow to orangish in color. Okay. So this you will have to remember. Now, इसमें से chlorophyll A is the main pigment. Chlorophyll A is the main pigment जो ultimately पूरी light energy को अपने पास capture कर लेता है. बच्चा CH3 and CHO are aldehyde group. CH3 and CHO. Chlorophyll sorry ये methyl group है and ये aldehyde group है. Chlorophyll A में side chain जो present होती है वो methyl होती है. But chlorophyll B में aldehyde group is present. The difference. Okay. Now chlorophyll A is the main pigment. This is the main pigment. Ultimately, पूरा light energy जो है वो इसी के पास transfer होगा. But बाकी जितने भी pigments इसके साथ present होंगे, these are accessory pigments. Chlorophyll A is the main pigment. जितने बाकी pigments हैं वो सब क्या है? These are accessory pigments. वो लाइट कैप्चर तो करेंगे. पिगमेंट का काम क्या होता है? पिगमेंट का काम होता है लाइट को कैप्चर करना. तो ऑल द पिगमेंट्स विल बी कैप्चरिंग द लाइट, बट अल्टीमेटली वो कैप्चर करके किससे दे देंगे? क्लोरोफिल ए को दे देंगे. सो द मेन पिगमेंट हियर इज क्लोरोफिल ए. ओके, क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट एंड एल्स बाकी जितने भी हैं दीज आर
accessory pigments like here. Okay, carotenoids part we are coming on to that. Just wait, we are coming. Carotenoids क्या करते हैं? They absorb light energy and transfer to chlorophyll A, and thus they act as accessory pigments. To understand or not? बच्चा CH3 is methyl. CH3 is methyl. केमिस्ट्री में तो पढ़ा होगा ये, अभी तो नहीं पढ़ा. CH3 it is methyl and CHO is aldehyde. Methyl group and aldehyde group. Okay. पिगमेंट का मेन काम लाइट एब्जॉर्ब करना होता है. लाइट एब्जॉर्ब करके अगर वो रिफ्लेक्ट करता है उस एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, तो वही लाइट हमें सामने दिखती है. तो वो कलर इम्पार्ट करना भी हो गया उसका एक काम. लेट्स से क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है, ग्रीन लाइट को वो एब्जॉर्ब करके क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है. इसीलिए हमें मोस्टली प्लांट्स क्या दिखते हैं? ग्रीन कलर के दिखते हैं. ओके, नाउ कैरोटीनॉइड्स एब्जॉर्ब. बट जिसको भी डाउट है, प्लीज note it down in your notebook somewhere and ask me at the end of the lecture. Do not interrupt in between, please. Now carotenoids करते हैं. Carotenoids they absorb light energy. अब देखो क्लोरोफिल ए जो है वो जो भी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा ना, उसको छोड़ के जो आसपास की वेवलेंथ्स होंगी लाइट की, उनको ये एक्सेसरी पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करते हैं. तो क्लोरोफिल ए अपने वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, बट आसपास की वेवलेंथ की लाइट किसने एब्जॉर्ब कर लिया? एक्सेसरी पिगमेंट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया. और अल्टीमेटली किसको दिया? क्लोरोफिल ए को पास कर दिया. सो क्लोरोफिल A is the main pigment and rest of them are the accessory pigments. Okay. Now कैरोटीन का एक काम बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये प्रोटेक्ट करता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन. ओके, इट प्रोटेक्ट द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन. अगर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन हो गया तो इट वोंट बी एबल टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी एंड फिर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो पाएगा. तो उसका फोटो ऑक्सीडेशन ना हो वो कौन प्रिवेंट करता है? उसको एक शील्ड कौन प्रोवाइड करता है? कैरोटीनॉइड. कैसे? लेट्स से सेंटर में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और आसपास प्रेजेंट है कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स. तो अगर बहुत ज्यादा लाइट आ रही होगी, इट कैन डिस्ट्रॉय क्लोरोफिल पिगमेंट. ओके, बहुत ज्यादा लाइट भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो, तो वो क्या करेंगे? आसपास वाले जो पिगमेंट, दे विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द लाइट एनर्जी सो दैट द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल गेट्स प्रोटेक्टेड. तो ऐसे वो एक उसको शील्ड प्रोवाइड करते हैं. उसको क्या प्रोवाइड करते हैं? एक शील्ड प्रोवाइड करते हैं, एंड दैट इज नोन एज, अगर वो शील्ड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो इट विल बी ऑक्सीडाइज एंड दैट इज नोन एज फोटो ऑक्सीडेशन. बिकॉज लाइट के प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन हो रहा है क्लोरोफिल का, तो उसे बचाते हैं. कौन बचाते हैं? कैरोटीनॉइड. ओके, सो दो फंक्शन यहाँ पे क्लियर है कैरोटीन्स के. एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी अदर देन द वेवलेंथ ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, that is why they are known as accessory pigments, right? And they also protect the chlorophyll molecules from photooxidation. So these are two main function of these carotenoids. Okay, now carotenoids को further classify किया है two types में, two groups में, and these are carotene and xanthophylls. One is carotene, the other is xanthophylls. Okay, carotene क्या होते हैं? They are orangish red in color. मोस्टली देखो कैरेट में मिलते हैं ये. कैरेट होता है ऑरेंज टू रेड कलर. ओके, एंड दे हैव जनरल फार्मूला ऑलरेडी हम लोगों ने अभी लास्ट में पढ़ा है, C40H56. ओके, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है.
कैरेट में अगर पूछेंगे कि कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है, तो योर आंसर विल बी कैरोटीन. देन ज़ेंथोफिल. ज़ेंथोफिल जनरली येलो कलर्ड कैरोटीनॉइड होते हैं, and they are the oxidized form of these carotenes. They are just oxidized form of these carotenes. So C40H56 is just like carotene, but oxygen molecule add हो गया because it is the oxidized form. And it impart color के जिसमें भी present होंगे उसे yellowish color provide करेंगे. Okay? So ये था carotenoid pigment. Now lutein. ल्यूटिन क्या होता है बच्चा? जब ये क्वेश्चन आ सकता है, ऑटम के टाइम पे जो लीव्स होते हैं उनका कलर ब्राउनिश कलर का हो जाता है ना, येलोइश ब्राउन कलर का हो जाता है, राइट? तो वो कलर किसकी वजह से होता है, कौन से पिगमेंट की वजह से होता है? दैट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. योर आंसर विल बी ल्यूटिन. इसका फॉर्मूला याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा. ओके. ल्यूटिन widely distributed xanthophyll. What is meaning of isolated from carrot? Carrot से निकाले जाते हैं ये pigment. We can extract them from the carrot. That is the meaning of isolation. Isolation is you can extract from the carrot. So these are present, generally they are present in carotenes. Xanthophyll येलोइश कलर के होते हैं, जिसका एक अच्छा एग्जांपल है ल्यूटिन. और कहाँ प्रेजेंट होता है ये? जब ऑटम में लीव्स के कलर येलोइश कलर के हो जाते हैं, उस टाइम पे जो येलोइश कलर होता है वो किसकी वजह से होता है? ल्यूटिन पिगमेंट की वजह से हो रहा है. ल्यूटिन is classified under xanthophyll only, बच्चा. That is why the formula is same. It is widely distributed xanthophyll only. Okay. Now fucoxanthin. फ्यूकोजेंथिन ब्राउन एल्गी में मिलता है. अगर डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा होगा 9th क्लास में तो यू मस्ट हैव रिमेंबर उसके अंदर कौन कौन से पिगमेंट होते हैं हम लोगों ने पढ़ा था. एंड फ्यूकोजेंथिन वाज वन ऑफ द पिगमेंट दैट वाज प्रेजेंट इन ब्राउन एल्गी. ओके, जो ब्राउन कलर इंपार्ट करते हैं उसे. सो फ्यूकोजेंथिन इज ब्राउन एल्गी की क्लास को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज थियोफाइसी. Fucosanthin is another pigment that is present in brown algae. Now, another class of pigment is phycobilin. Phycobilin, and these phycobilin are present in blue-green algae, that is also known as cyanobacteria, and red algae. Red algae में कौन सा pigment present होता है? Phycobilin के एक example है phycoerythrin. Phycoerythrin. Okay, I think this much part is clear. एक बार अच्छे से इसको रीड करो from starting till end. Just go through the slide once. Understood? But the phycobilin is different. Phycobilin is different. Phycoerythrin is the pigment that is present in red algae, and it is a type of phycobilin.
ल्यूटिन केमिकल फॉर्मूला इन ज़ैंथोफिल केमिकल, बच्चा ल्यूटिन इज ज़ैंथोफिल ओनली, इट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ज़ैंथोफिल। इस ध्यान से एक बार पढ़ो। बच्चा फाइकोबिलिन इज डिफरेंट देन ज़ैंथोफिल, फाइकोबिलिन इज डिफरेंट देन ज़ैंथोफिल, ल्यूटिन एंड फ्लूकोज़ैंथिन कम्स अंडर ज़ैंथोफिल। Glucoxanthin formula is different because it is more oxidized form. यहाँ पे ब्राउन कलर देता है वो, यहाँ पे येलो कलर दे रहा है, इट इज लेस ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। फोटो ऑक्सीडेशन क्या होता है? फोटो ऑक्सीडेशन लेस से बीच में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है और आसपास प्रेजेंट है कैरोटेनॉइड। अब बहुत ज्यादा लाइट अगर आ रही है, लाइट की इंटेंसिटी हमने बहुत इंक्रीज कर दी, तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या होता है, वो ऑक्सीडाइज, बहुत ज्यादा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, और जो उसका स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो बहुत ज्यादा लाइट इंटेंसिटी भी अच्छी नहीं है, तो उससे बचाने के लिए उस इसको फोटो ऑक्सीडेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। तो फोटो ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, कैरोटीन्स क्या होते हैं जो आसपास प्रेजेंट होते हैं नियर द क्लोरोफिल ए, वो एक्सेस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एंड दैट इज हाउ दे प्रिवेंट द फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ कैरोटेनॉइड्स। I think this much is clear. फाइकोबिलिन ज़ैंथोफिल डिफरेंट है, फाइकोबिलिन ज़ैंथोफिल डिफरेंट है। ओके, लेट्स प्रोसीड। तो अभी तक हमने रिक्वायरमेंट पढ़े, रिक्वायरमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड लाइट। फाइकोसियानिन भी बच्चा फाइकोबिलिन के अंदर ही आता है, इट इज अ टाइप ऑफ फाइकोबिलिन ओनली, फाइकोसियानिन। नाउ रिक्वायरमेंट में हमने क्या क्या पढ़ा? वी हैव स्टडीड अबाउट लाइट, द वेरी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लाइट, देन वी हैड स्टडीड अबाउट वाटर, another is carbon dioxide, and then the pigments. Pigments में main pigment chlorophyll molecules हो गए, and then some accessory pigments like carotenes, xanthophylls, lutein, these all. Okay, so now let's start with the site of photosynthesis. Okay, site of photosynthesis. Now site of photosynthesis बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कौन कहाँ पर होता है photosynthesis? It occur in leaf part, right? लीफ के अंदर एक टिश्यू होता है नोन एज मीजोफिल टिश्यू। हाँ, डेजर्ट प्लांट में स्टेम्स के अंदर भी होता है, ग्रीन स्टेम्स में भी होता है, बट मेनली कहां पर होता है ये? लीव्स में। लीव्स में मीजोफिल टिश्यू इज प्रेजेंट, मीजोफिल टिश्यू प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर, एंड इन मीजोफिल टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, that is the actual site for photosynthesis. I think ये पार्ट क्लियर होगा। मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं कहां पर? लीव्स। लीव्स में मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट is the actual site for photosynthesis that fixes carbon dioxide and form carbohydrate which is glucose. कैसे होता है? we will see. ओके, सो एक बार देख लेते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं। लेट्स सी। नाउ एज यू कैन सी, एक लीफ हम लोगों ने यहाँ पर सेक्शन लिया है। ओके,
लीफ को कट किया एंड दिस इज द सेक्शन. अगर देखोगे माइक्रोस्कोप के थ्रू ऐसा कुछ दिखाई देगा. बच्चे ये सब अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ, आगे डिस्कस करने वाली हूँ. यू विल गेट टू नो, डोंट वरी. लीफ को अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पर आ गया, उसका सेक्शन हमें दिखाई देगा. दिस इज द सेक्शन दैट वी कैन और वी विल बी एबल टू सी थ्रू माइक्रोस्कोप. ओके, इट हैज अपर एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर जो यहाँ पर लीफ प्रेजेंट होगी, अपर एपिडर्मिस, एंड नीचे कौन सा है, लोअर एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. ओके, अपर एपिडर्मिस इज प्रेजेंट and then lower epidermis is present. These, ये जो cells दिख रहे हैं, this line is upper and lower epidermis. Okay, इसके ऊपर देखो ये wavy एक line present है. This wavy line is cuticle. Cuticle ये कुछ plants में होती है, कुछ में नहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं है. Epidermis will be there. Epidermis सब plants में होगी, बट क्यूटिकल कुछ प्लांट्स में होता है, कुछ में नहीं भी होता. क्यूटिकल का काम क्या होता है एक्चुअली, इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट. ओके, तो अगर डेजर्ट प्लांट होगा तो वहां पर लाइट को क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है. बहुत ज्यादा हीट, टेम्परेचर, लाइट जो आ रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन का रेट हाई कर देता है. तो क्यूटिकल उन प्लांट्स में क्या होता है, बहुत थिक होता है. ओके, सो अभी क्या है, नॉर्मल लीफ की बात कर रहे हैं. क्यूटिकल आउटर मोस्ट लेयर इधर एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, देन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस. नाउ इन बिटवीन दिस अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस, the tissue that is present is known as mesophyll tissue. See, this all is mesophyll cells, or you can say mesophyll tissue. Okay, लोअर एपिडर्मिस क्या मिलते हैं, मोस्टली प्रेजेंट होते हैं लोअर एपिडर्मिस में, स्टोमाटा इज प्रेजेंट. उस दिन बताया था स्टोमाटा जनरली लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं लीव्स के. ओके, लोअर एपिडर्मिस में आपको ये गैप दिखाई दे रहा है, एंड दिस गैप इज नथिंग बट स्टोमाटा ओनली. ओके, so between upper epidermis and lower epidermis, these cells are present, and these cells are mesophyll cells or mesophyll tissue. एंड बीच में देखो, ये बीच वाला सेक्शन जो है यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जहां पे भी वेन्स है लीव्स की, जहां वेन्स और वेनलेट्स हैं, वहां पर क्या प्रेजेंट होगा, वेस्कुलर बंडल, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम. सो ये वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है, जाइलम एंड फ्लोएम, और आसपास ये जितना भी टिश्यू प्रेजेंट है इन बिटवीन अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस इज मेसोफिल सेल. नाउ मेसोफिल सेल में दो तरह के लेयर होते हैं. मेसोफिल सेल्स में दो तरह के लेयर होते हैं. ये देखो जो ऊपर वाला लेयर है, इट इज कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल. सब सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड हैं, राइट, एक दूसरे से बिल्कुल साथ में, मोर और लेस सेम साइज के, सेम शेप के. दीज सेल्स, दिस लेयर इज नोन एज पैलिसेड लेयर. पैलिसेड लेयर. ओके, एंड बीच में यहाँ पर नीचे के साइड सेल्स आर, these have space between in them, and that is why this type of cells or these layers are known as spongy. Spongy parenchymatous layer. So mesophyll cells के अंदर दो तरह के सेल्स आ गए. वन इज पैलिसेड, जो पैलिसेड लेयर बना रहे हैं जिसमें कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स हैं, एंड अदर इज स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जिसमें बीच बीच में क्या है, स्पेस है. ओके, पैलिसेड लेयर, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा. नाउ इन सब सेल्स में, मेसोफिल सेल्स के जितने भी सेल्स हैं, इन सब में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट. क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट. सी, दिस क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट. नाउ अब एक क्लोरोप्लास्ट को देखोगे, इट
is a double membrane bound cell organelle. डबल मेम्ब्रेन बाउंड, सेल्स के चैप्टर में पढ़ा होगा लास्ट ईयर तक. इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. ओके, इट हैज अ आउटर लेयर, देन इट हैज अ इनर लेयर. आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट एंड इनर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. ओके, outer membrane and inner membrane. Then some disc-like structures are present in a stack. ये disc-like structure अगर मैं single लेती हूँ तो these single structures are thylakoid. Single structures are thylakoid. और ये पूरा ग्रुप अगर मैं लूंगी, the stacks of these thylakoids are known as grana. टर्मिनोलॉजी सही से याद रखो बिकॉज आगे चल के वो काम आएगा. ओके, आउटर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट में, इनर मेम्ब्रेन है. ओके, आउटर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, इनर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट, देन फाइन और डिस्क-like structures are present known as thylakoid. Stacks of thylakoid are known as grana or granum. ओके, नाउ जो जगह रह गई है, दिस पार्ट इज नोन एज स्ट्रोमा. अदर देन दिस थाइलाकोइड्स, जो पार्ट रह गया है दैट इज नोन एज स्ट्रोमा. एंड दो थाइलाकोइड्स को जो ज्वाइन करते हैं दैट इज नोन एज स्ट्रोमल लैमेले. दैट आर नोन एज स्ट्रोमल लैमेले. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस. ये डायग्राम चाहो तो नोट कर लो, जल्दी से बना लो नोटबुक में अभी. ओके, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, disc-like structure that are thylakoids. Stacks of thylakoids are known as granum. So these all are granum. उनको जो ज्वाइन कर रहा है these are known as stromal lamellae, क्योंकि ये सिंगली प्रेजेंट है और कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा रीजन में प्रेजेंट है. So stromal lamellae. I hope this much is clear. कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्चुअली क्या है, दिस क्लोरोप्लास्ट. इसी के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है एक्चुअली. एंड दिस क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स ऑफ द लीफ. ओके, एंड मेसोफिल सेल्स में दो लेयर आती है, एक कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स लेयर दैट इज नोन एज पैलिसेड लेयर. The other has space in between them and is known as spongy parenchyma. अगर ड्रॉ करना है तो इतना पार्ट ड्रॉ कर लो. ये दिस इज इम्पोर्टेंट. The chloroplast diagram is important. अगर ड्रॉ करना है अभी तो कहीं पे छोटा सा just to have an idea ड्रॉ कर लो so that आगे की टर्मिनोलॉजी समझ में आए. So is my voice clear now? तो नहीं आ रहा था अभी, बीच में क्रैक हो रहा था. There is some network problem, बच्चा. Sorry, can't help it. Okay. क्लोरोप्लास्ट डायग्राम फिर से एक्सप्लेन करना है. ओके, देखो क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ मेनली फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है, लीफ के अंदर. ये लीफ हमने पार्ट किया, उसमें अपर एपिडर्मिस है, लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट है. इसके बीच में कौन से सेल्स प्रेजेंट है, मेसोफिल. मेसोफिल सेल्स है क्लोरोप्लास्ट इन देम. ओके, नाउ क्लोरोप्लास्ट की अगर बात करें तो इट हैज एन आउटर मेम्ब्रेन, देन इट हैज एन इनर मेम्ब्रेन. So two membranes are present. Double membrane bound organelle है. Okay. Then disc-like structures are present. These disc-like structures are known as thylakoids. These disc-like structures are known as thylakoids. And stack or group of thylakoid is known as grana. Okay. Now grana को जो connect करते हैं और singly stroma में present है, these are known as stromal lamellae. This whole part is known as, other than the thylakoid part, is known as stroma. Okay.
नाउ क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? कल्पना, क्लोरोफिल थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है. लेट्स से दिस इज अ सिंगल थाइलाकोइड ना, इसका भी एक मेम्ब्रेन है अलग से. इस मेम्ब्रेन पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे द क्लोरोफिल्स आर प्रेजेंट. Where exactly in chloroplast does photosynthesis occur? अभी क्लियर हो जाएगा. स्टेप बाय स्टेप वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग. पूरा क्लियर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रहा है क्लोरोप्लास्ट में, कहाँ पर कौन सा स्टेप हो रहा है. ओके हाँ, मीजोफिल सेल सिंगल मेम्ब्रेन ही है, वो सिर्फ सेल ही है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें डबल मेम्ब्रेन वगैरह. सेल्स के अंदर अलग अलग ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे और उसमें क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनल होती है, उसकी डबल मेम्ब्रेन होती है. यस, फ्रेड चैनल जो कनेक्ट करते हैं लैमेला को. लास्ट स्लाइड जल्दी से नोट करो प्लीज. पूरा उसमें नोट मत करो. डोंट राइट ऑल द पॉइंट्स इन लैंग्वेज, होल लैंग्वेज. डायग्राम बना लोगे और ये स्ट्रोमा क्या होता है, थाइलाकोइड, ग्रैना क्या होता है, वो मार्क कर लोगे, दैट वुड बी इनफ. Chlorophyll are present in the thylakoid membrane. थाइलाकोइड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है, तो उसकी मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है. लेट्स से ये थाइलाकोइड्स हैं, ऐसे सेट्स ऑफ थाइलाकोइड प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर. अभी हमने देखा थाइलाकोइड्स की भी तो अपनी एक मेम्ब्रेन है. इन मेम्ब्रेन पे ही यहाँ पर क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ओके I hope this much part is clear. Let's proceed. So site of photosynthesis is, the actual site of photosynthesis is chloroplast. Okay. Now phases of photosynthesis. Phases of photosynthesis. बच्चा photosynthesis two main phases में divided है. दो main phases में photosynthesis को divide किया है. Okay. The one is light reaction, light phase, and the other is dark reaction or the dark phase. Okay. One is light phase, the other is dark phase. Two phases में divide किया है. Last slide अभी तक हुआ. Please do it fast. Don't write it in the language. Just mark them in the diagram. Stroma क्या होता है, thylakoid क्या होता है, grana क्या होता है, that's it. So बच्चा photosynthesis actually दो phases में divided है. One is the light phase and other is the dark phase. ठीक है. So basic difference क्या है light phase में? Karthik, you are asking, does the conversion to ATP from glucose occur in the same manner as in humans? Yes, respiration जब चैप्टर हम डिस्कस करेंगे बच्चा, तो यू विल गेट टू नो कैसे एक्चुअली एटीपी फॉर्म होता है ग्लूकोज से. तो वहां पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे.
That doubt will be cleared in the respiration part. Okay. Now phases of photosynthesis. Phases of photosynthesis में दो phases में divide किया पूरे photosynthesis process को. The one is light phase or the light reaction. The other is dark phase or the dark reaction. Okay. Light को photochemical reaction भी बोलते हैं और photochemical phase भी बोलते हैं. And these are light dependent reaction as the name suggesting. And it was mainly given by, इसमें जो हो रहा है, it was given by Hill. एक साइंटिस्ट है, उन्होंने दिया था. That is why also known as Hill's reaction. ओके, तो इसमें एक पार्ट आता है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे. That is known as Hill's reaction. So one is the light phase, the other is dark phase. Light phase और dark phase में डिफरेंस क्या है? डार्क फेज का मतलब ये नहीं है कि ये डार्क में होगा, ये रात में होगा, और ये वाला फेज लाइट वाला फेज है तो डे टाइम में होगा. ऐसा कुछ नहीं है. डार्क फेज भी लाइट में हो सकता है, डे टाइम में हो सकता है, बट लाइट फेज को डार्क फेज को लाइट नहीं चाहिए होती है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? लाइट फेज और डार्क फेज दोनों डे टाइम में हो सकते हैं. ओके, डार्क फेज डजंट मीन कि वो डे टाइम में नहीं हो रहा है और वो रात में ही हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. बट डार्क फेज को लाइट की जरूरत नहीं होती है. दैट इज व्हाई उसको हम लोगों ने डार्क फेज बोल दिया, बिकॉज इट डजंट रिक्वायर लाइट, बट इट रिक्वायर द प्रोडक्ट्स दैट आर फॉर्म्ड इन लाइट रिएक्शन. प्लीज अंडरस्टैंड, डार्क रिएक्शन डजंट मीन इट कैनॉट अकर इन लाइट, but because it doesn't require light, it is known as dark phase. इसको लाइट नहीं चाहिए इसलिए डार्क फेज बोल दिया. बट लाइट फेज में जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो प्रोडक्ट उसको चाहिए. ओके, तो पहले लाइट फेज होगा, उसके बाद उसके प्रोडक्ट जो बनेंगे उनका यूटिलाइजेशन किसमें होगा? डार्क फेज में. ओके, so light is light dependent phase क्योंकि उसे लाइट चाहिए, बट डार्क फेज को लाइट नहीं चाहिए, इसलिए इट इज लाइट इंडिपेंडेंट फेज. ओके, इतना पार्ट समझ में आया? एवरीवन प्लीज आंसर मी. लाइट फेज लाइट में होगा, डार्क फेज लाइट में भी हो सकता है, डार्क में भी हो सकता है. ठीक है, यो लाइट फेज डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन लाइट पे, बट डार्क फेज इंडिपेंडेंट है लाइट पे, लाइट नहीं चाहिए होती है. लाइट फेज पहले होगा और कुछ प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो प्रोडक्ट्स बनेंगे लाइट फेज में दैट विल बी रिक्वायर्ड इन डार्क फेज. ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. अब देखो, ये यहाँ पर हिल ने दिया था तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज हिल रिएक्शन. यहाँ पे ब्लैकमैन ने कॉन्सेप्ट दिया था, that is why it is known as Blackman reaction. यहाँ पर mainly dark phase में ना ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट. that is the main product of photosynthesis. that is why इसको हमने biosynthetic phase बोला है. biosynthetic phase मतलब एक बायोमोलिक्यूल बन रहा है, ग्लूकोज is forming. that is why biosynthetic phase. I hope इतने terms clear हैं अभी तक. okay, now during this stage energy from sunlight is absorbed and converted to chemical energy which is stored in ATP and NADPH. अब ATP और NADPH क्या है? ATP और NADPH are energy carrying molecules. These are energy carrying molecules. Okay, NADPH की फुल फॉर्म एनीवन और ATP की फुल फॉर्म? हाँ, ATP की तो सबने लिख दी.
mostly, right? Nicotinamide. NADPH is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate. This is NADPH. And ATP is adenosine triphosphate. Okay. So these both of them are energy molecule. अब ग्लूकोज बनाना है तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. वो एनर्जी मॉलिक्यूल्स कहाँ बन रहे हैं? लाइट फेज में. These are two energy molecules. इनको assimilatory powers भी बोलते हैं बच्चा. These are also known as assimilatory powers. Assimilatory powers. Okay. तो इनके पास बहुत एनर्जी है, पावरफुल है. एसिमिलेटरी पावर्स बोलते हैं इनको. ओके, सो याद रखना NADPH is nicotinamide adenine dinucleotide phosphate and ATP is adenosine triphosphate. So these high energy molecules are forming in light phase. Light reaction में ये बन रहा है. Then dark reaction में इन दोनों प्रोडक्ट्स का यूज हो रहा है. जो लाइट रिएक्शन के इन दोनों प्रोडक्ट्स का यूज हो रहा है. एंड अल्टीमेटली क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट बन रहा है. Carbohydrates are getting synthesized. मतलब glucose is getting synthesized. Okay. तो easy way में अगर मैं बोलूं, this light reaction, dark reaction, light dependent reaction. This is light independent reaction. यहाँ पर synthesis हो रहा है ATP and NADPH का. ऐसे लाइट और वाटर मॉलिक्यूल का यूज हो रहा है. हम लोगों ने पढ़ा है ऑलरेडी फोटोसिंथेसिस में वन रिक्वायरमेंट इज लाइट, अदर रिक्वायरमेंट इज वाटर. ऑलरेडी हम लोग ये पढ़ चुके हैं. तो इन दोनों का यूज होके क्या हो रहा है? इन दोनों का यूज हो रहा है एंड व्हाट इज फॉर्मिंग? एटीपी, NADPH और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी लिबरेट होता है. जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था? इक्वेशन याद है फोटोसिंथेसिस की? This oxygen molecule that was liberating, right? This oxygen molecule that was liberating as the byproduct of photosynthesis. यही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये, जो कब रिलीज होता है? लाइट रिएक्शन में. लाइट रिएक्शन में ये रिलीज हो जाता है, लिबरेट हो जाता है. ओके. ATP और NADPH इसके प्रोडक्ट हो गए लाइट रिएक्शन के, जो आगे जाके यूटिलाइज होंगे डार्क रिएक्शन में. और ऑक्सीजन प्लांट्स लिबरेट कर देते हैं, जिनको बाद में अदर ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के लिए यूज करते हैं. राइट? ब्रीदिंग प्रोसेस. व्हाट इज PI? PI इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बच्चा. PI इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट. अभी बता रही हूँ, उस पे आऊंगी, अभी बताऊंगी. Sharvin, what is the difference between NADP and NADPH? बच्चा, NADPH is oxidized or sorry reduced form of NADP. हाइड्रोजन आ गया ना? It is reduced form of NADP only. अभी पता चल जाएगा. I will discuss in detail. Just wait. Yes, light reaction occur first and then dark reaction. Light reaction is followed by dark reaction. So light reaction में we are using light plus water molecule, जिसका use होके ATP and NADPH are forming, plus oxygen is also liberated. Now these ATP and NADPH, they are being utilized, plus carbon dioxide is also getting utilized. This carbon dioxide. And ultimately sugar or the glucose molecule is forming. ये पूरा प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस. स्टेजेस ऑफ फोटोसिस्टम लिखा है, इसको ठीक कर लेना बच्चे. स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इट इज. स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस.
यस, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन दोनों साथ साथ भी चल सकते हैं। एक बार लाइट रिएक्शन एक हो गई और एक एटीपी और NADPH मिल गया तो एक डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फिर से लाइट रिएक्शन में स्टार्ट हो जाएगा। सो लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन साथ साथ भी हो सकते हैं, नॉट अ बिग डील। बट सबसे पहले जो स्टार्ट होगा डेट विल स्टार्ट फ्रॉम लाइट रिएक्शन, क्योंकि उसी के प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं डार्क रिएक्शन में। ओके, आई होप स्टेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लियर है। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, लाइट डिपेंडेंट, लाइट इंडिपेंडेंट। यहाँ पर मेनली एटीपी NADPH का सिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पर ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है। लाइट और वाटर को यूज करके एटीपी NADPH फॉर्म हो रहा है, प्लस ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगा एंड एटीपी और NADPH यहाँ पर यूज हो रहा है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज हो रहा है और बन जाएगा शुगर मॉलिक्यूल बन जाएगा। अर्श कितना एटीपी बन रहा है, कितना NADPH बन रहा है, हम लोग सब अभी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ इन शॉर्ट के एक्चुअली हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन डिटेल, प्लीज वेट। ओके, बेसिक आइडिया भी मिल गया फोटोसिंथेसिस का। लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर एक इमेज दी है, इस इमेज में देखो ये किसका इमेज है? इमेज फॉर क्लोरोप्लास्ट ओनली। ओके, तो ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। आउटर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये पूरा स्टोमल रीजन हो गया। देन यहाँ पर ये क्या हो गए? थाइलाकोइड्स हैं, दीज आर थाइलाकोइड्स। और यहाँ इन स्टैक्स ऑफ थाइलाकोइड्स को क्या बोला है? ग्रैना। सो दीज आर थाइलाकोइड्स स्ट्रक्चर्स, इनके ग्रुप को क्या बोला है? ग्रैना। ओके, सो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। नाउ देखो क्लोरोप्लास्ट में मैंने क्या बताया था? क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे। तो दीज आर थाइलाकोइड्स और इनकी मेम्ब्रेन पे ही क्या प्रेजेंट होंगे? क्लोरोफिल पिगमेंट। और पिगमेंट का काम हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया है कि पिगमेंट का काम क्या है? लाइट को कैप्चर करते हैं वो, जो भी पिगमेंट प्रेजेंट हो, वेदर इट इज क्लोरोफिल A, B, C, D, E, कैरोटीनॉइड, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीन, फाइकोबिन, व्हाटएवर पिगमेंट इट इज, उनका काम क्या है? लाइट को एब्जॉर्ब करना। तो जितने भी पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे? और मेनली क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन पे। ओके, वो पिगमेंट जैसे लाइट फॉल होगी लीफ पे, लीफ लाइट फॉल हुई तो मतलब क्लोरोप्लास्ट कहाँ प्रेजेंट है? लीफ के अंदर ही प्रेजेंट है, तो उसके ऊपर भी लाइट फॉल हो रही है। दिस लाइट इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड बाय दीस क्लोरोफिल पिगमेंट्स और वेरियस अदर पिगमेंट्स दैट आर प्रेजेंट ऑन थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। जैसे इन्होंने लाइट कैप्चर किया, लाइट रिएक्शन स्टार्ट हो गई। लाइट रिएक्शन स्टार्ट हुई तो ऑलरेडी ये एडीपी और पीआई हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, ऑलरेडी हमारी बॉडी में भी होता है। एंड राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स की बॉडी में भी ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। एडीपी इज एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, एटीपी इज ट्राइफॉस्फेट, एडीपी इज डाइफॉस्फेट। मतलब यहाँ पर दो फॉस्फोरस होंगे, दो फॉस्फेट ग्रुप होंगे, 2। ट्राइफॉस्फेट में 3 हो जाते हैं। तो डाइफॉस्फेट प्लस एक अकेला फॉस्फेट मिलकर ये ट्राइफॉस्फेट एटीपी बना लेते हैं, व्हिच इज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। क्योंकि जो ये दो फॉस्फेट है एंड थर्ड फॉस्फेट है ना, इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है, बॉन्ड इज ऑफ हाई एनर्जी, इसीलिए एटीपी एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। ओके, तो लाइट रिएक्शन हुई, लाइट किसने कैप्चर किया? क्लोरोफिल पिगमेंट्स में जो थाइलाकोइड में प्रेजेंट है। ओके, सो लाइट रिएक्शन हो गई, एटीपी और NADPH बन गए। कैसे बने अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इन डिटेल, बट प्रोडक्ट हो गए लाइट रिएक्शन के एटीपी एंड NADPH। और देखो ये ऑक्सीजन यहाँ पे लिबरेट हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, वी विल डिस्कस। बट ऑक्सीजन लिबरेट हो रहा है, एटीपी एंड NADPH लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बन गए। Now this ATP and NADPH कहाँ यूटिलाइज होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यूटिलाइज होते हैं
और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। यहाँ पे Ga3 दिया हुआ है, इट इज ग्लूकोज ओनली, यहाँ पे ग्लूकोज बन जाता है। ओके, तो उसको, ये क्या हो रहा है, ये कौन सा फेज में हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन डार्क फेज। ओके, एंड दिस light reaction, it occurs in the thylakoid membrane. Light reaction, light dependent reaction is occur on thylakoid membrane, क्योंकि thylakoid membrane पे ही तो क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। तो क्लोरोफिल पिगमेंट क्या करेंगे, लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे। तो लाइट रिएक्शन का साइट कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहाँ होगा, it will be in thylakoid membrane, or you can say grana. Okay, but the site for dark reaction is stroma. क्यों, क्योंकि डार्क रिएक्शन की जितनी भी एंजाइम्स हैं, डार्क रिएक्शन में हमें बहुत सारी एंजाइम्स का यूटिलाइज करना होगा, वो एंजाइम सब स्ट्रोमा में मिलती हैं। यहाँ पर why is it called Calvin cycle? Calvin cycle तक अभी हम लोग पहुंचे नहीं है आकांक्षा, इसको बोलते हैं। यहाँ पर यहाँ डार्क रिएक्शन लिखा है, this is light reaction, this is dark reaction. I will discuss about Calvin cycle very soon. अभी मत सोचो उसे। Okay, now dark reaction, light reaction कहाँ पर हो रही है, the site for light reaction is thylakoid membrane or the grana, and the site for dark reaction is stroma, because stroma में ही बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं that will be needed for this dark reaction to occur. It will be needed for glucose synthesis. So dark reaction site stroma, light reaction site is grana or the thylakoid membrane. इतना क्लियर है बच्चा सबको? Tell me it is clear. Okay, so light reaction details देखते हैं। What is PI? PI is inorganic phosphate. इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मतलब एक फॉस्फेट प्लस यहाँ पर एटीपी में क्या है, दो फॉस्फेट हैं, दोनों मिलकर पीआई इस डाइफॉस्फेट से ज्वाइन होता है तो एटीपी बनता है। पीआई इज इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, तो लाइट रिएक्शन के फेजेस, मेनली लाइट रिएक्शन में मतलब क्या क्या हो रहा है, लेट अस डिस्कस दैट। सबसे पहले एक्साइटेशन होगा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, जो जैसे ही लाइट फॉल होगी फोटोसिंथेसिस लीव्स पे, जैसे ही लाइट फॉल हुई लीव्स पे, उसमें प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है थाइलाकॉइड, और थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है क्लोरोफिल। जैसे ही लाइट फॉल हुई और लाइट कैप्चर किया क्लोरोफिल में, इट गेट्स एक्साइटेड, और इतना एक्साइटेड हो जाता है कि क्या करता है, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। इट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन। गेटिंग इट? लाइट फॉल हुई, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे पड़ी, एंड वो बहुत एक्साइटेड हो गया, उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई, लाइट एनर्जी आ गई ना, उसने लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया तो बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई। हमारे पास भी बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाती है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। तो वी आर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज ऑल्सो गेटिंग एक्साइटेड, और जैसे ही वो एक्साइटेड हुआ, इट इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। क्यों, क्या, कब, कैसे, समझ में आएगा, जस्ट अभी इतना सुनो। ओके, excitation of chlorophyll is happening in the light reaction. The second thing that is happening, photolysis of water molecule, मतलब water molecule का splitting होता है। Photolysis मतलब लाइट के प्रेजेंस में लाइसिस हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल को हम ब्रेक कर रहे हैं। लाइसिस मीन ब्रेक करना in the presence of light, light reaction में हो रहा है, that is why it is known as photolysis. So photolysis of water molecule is happening,
It is also known as splitting of water. दूसरी चीज ये हो रही है. Okay. Third is photophosphorylation is happening and production of assimilatory part. बच्चा अभी हमने पढ़ा था ATP और NADPH में बन रहे हैं राइट रिएक्शन में. ओके, सो दिस formation of ATP from ADP plus inorganic phosphate is known as photophosphorylation. Phosphorylation is the process of formation of ATP. Normally, phosphorylation is the process of formation of ATP. अब ये phosphorylation is happening in the presence of light. So that is why हमने इसको क्या नाम दे दिया? Photophosphorylation. ATP form हो रहा है in the presence of light. That is why photophosphorylation. Plus NADPH भी form हो रहा है तो production of assimilatory part. This is what is happening in light reaction. Clear है यहाँ तक सबको? What is ADP? ADP is बच्चा diphosphate adenosine. No. It is adenosine diphosphate. ADP is adenosine diphosphate. When it combines with inorganic phosphate, it forms triphosphate. Diphosphate मतलब दो phosphate होंगे. एक और phosphate यहाँ से join हो गया तो triphosphate. How much ATP are formed in photophosphorylation? बच्चा we will discuss it. अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया कि लाइट रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है. We will come on to that point also. Splitting of water molecule does not release ATP. उसका काम कुछ और है. हम लोग देखेंगे अभी. Let me discuss it in detail. We will start light reaction. आज तो नहीं हो पाएगा. चलो अभी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं, देन यू विल गेट टू नो व्हाट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, व्हाट इज एसिमिलेटरी पार्ट, सब कुछ अभी डिस्कस हो जाएगा. हाउ इज एडीपी डिफरेंट फ्रॉम एनएडीपीएच? बच्चा एटीपी में एनर्जी कम होती है, एनएडीपीएच इज फार मोर हायर इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी इन टर्म्स ऑफ एनर्जी. NADPH में 2 ATP के बराबर, सॉरी 3 ATP के बराबर एनर्जी होती है. 1 NADPH is equal to 3 molecules of ATP. Okay, so NADPH is a very high energy molecule, you can say. लाइट रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है? एक्साइटेशन हो रहा है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हो रहा है, phosphorylation हो रहा है एंड प्रोडक्शन ऑफ एसिमिलेटरी पार्ट दैट इज NADPH. ये सब लाइट रिएक्शन में हो रहा है. ओके, निकोटिनामाइड इज अ नेम ऑफ केमिकल ओनली. बच्चा एडेनोसाइन, ये सब निकोटिनामाइड, ये सब क्या है? दीज आर केमिकल. So can the plant directly use the ATP and NADPH produced in light reaction? हाँ बच्चा, लाइट रिएक्शन में ही तो जैसे ही बनेगा उसको डायरेक्टली यूज करेंगे डार्क रिएक्शन में, एंड दे विल फॉर्म ग्लूकोज. वी आर गोइंग टू डिस्कस. एक बार डिटेल पढ़ लो, ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग के क्लियर हो जाएंगे, डोंट वरी. तो आगे बढ़ने से पहले, लाइट रिएक्शन को थोड़ा डिटेल में पढ़ने से पहले कुछ टर्म्स हैं, क्लियर कर लेते हैं. ओके, सूर्य जो ATP
यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है बच्चा, वो ग्लूकोज बनाने में यूज हो रहा है, वो ग्लूकोज बनाने में यूटिलाइज हो रहा है, उससे एनर्जी यूज अपने लाइफ प्रोसेस में वो यूज नहीं कर रहे हैं. दे आर नॉट यूजिंग इन वेरियस लाइफ प्रोसेस अंटिल और अनलेस खाना मिलेगा नहीं और खाना से और एटीपी बनेगा नहीं, तो कैसे लाइफ प्रोसेस. Okay, so photosystem. Now photosystem photosystem होते हैं PS1 and PS2. अभी photosystem होता है photosystem, right? देखो सिस्टम वो यूनिट होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक यूनिट होते हैं जहां पे लाइट एब्जॉर्ब हो रही है एंड देन पूरा एडीपी एनएडीपीएच ये सब फॉर्म हो रहा है. तो इन सब यूनिट्स को मिला के हम क्या बोलते हैं, फोटो सिस्टम. पूरा एक सिस्टम बनाते हैं जहां पर लाइट रिएक्शन अकर होगी, तो दैट इज नोन एज फोटो सिस्टम. फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं, PS1 एंड PS2. फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2. दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन PS1 रिएक्शन सेंटर जो होता है वो 700 नैनोमीटर पे होता है और PS2 में रिएक्शन सेंटर की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा 680 नैनोमीटर का होता है. देखो इसका मतलब क्या है, रिएक्शन सेंटर और एसेसरी पिगमेंट्स देखते हैं. देखो जो फोटोसिंथेसिस यूनिट होगी, सॉरी फोटो सिस्टम होगा, उसके अंदर एंटीना कॉम्प्लेक्स या फिर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है. Bhupen, I will take the doubt in next 5-10 minutes. Can you wait, please? देखो फोटो सिस्टम में एंटीना कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये दो चीजों का बना होता है, रिएक्शन सेंटर एंड एसेसरी पिगमेंट. हम लोगों ने ऑलरेडी, मैंने बताया था, वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट मेन पिगमेंट जो होता है वो कौन सा होता है, क्लोरोफिल ए. मेन पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए. दिस क्लोरोफिल ए मेक्स दिस रिएक्शन सेंटर. बाकी ये सब क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स हैं जो उसके आसपास प्रेजेंट है. ओके, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है, एंटीना कॉम्प्लेक्स और दी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. क्योंकि ये लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइट को हार्वेस्ट कर रहा है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स. हमारा कहीं पे भी एंटीना लगा होता है, तो एंटीना का काम क्या होता है, सिग्नल्स को क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है ना, सिग्नल कैच करता है. तो यहाँ पर ये लोग लाइट कैच कर रहे हैं, दैट इज व्हाई एंटीना कॉम्प्लेक्स. तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हो गया. समझ में आया इसका मतलब? इसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, रिएक्शन सेंटर प्लस एसेसरी पिगमेंट. रिएक्शन सेंटर इज द मेन पिगमेंट, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड दैट इज क्लोरोफिल ए. रिएक्शन सेंटर क्या हो गया, क्लोरोफिल ए, जिसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए पिगमेंट ही प्रेजेंट होंगे. बट आसपास जितने भी पिगमेंट्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल बी हो, सी हो या डी हो, कैरोटीन हो, ज़ैंथोफिल हो, कोई भी हो, वो सब क्या बना रहे हैं, एसेसरी पिगमेंट. अब लाइट कैप्चर कर रहे हैं, कैप्चरिंग द लाइट, बट दे आर ट्रांसफरिंग ऑल द लाइट टू द chlorophyll A. That is why it is known as main pigment. That is why it is known as the reaction center. I hope ये दोनों, ये सब टर्म्स क्लियर है.
एंटीना कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन सेंटर प्लस एसेसरी पिगमेंट। देखो एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना का काम होता है सिग्नल को कैच करना। लाइट हार्वेस्टिंग, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, लाइट को कैच कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, दैट इज व्हाई एंटीना जैसा बिहेव कर रहे हैं, तो इसे एंटीना कॉम्प्लेक्स बोल दिया। इट्स आल्सो नोन एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है। बना किससे, दो चीजों से, रिएक्शन सेंटर प्लस एसेसरी पिगमेंट। रिएक्शन सेंटर इज आवर मेन क्लोरोफिल, दैट इज क्लोरोफिल ए। accessory pigments आसपास present light को capture कर रहे हैं and they are transferring all the light to the chlorophyll A, that is reaction center. Now बच्चा photosystem का part है antenna complex. How does light travel from accessory pigment to chlorophyll A? There is a phenomena known as resonance transfer. रेजोनेंस ट्रांसफर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, बट देयर इज अ फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस ट्रांसफर। इसके थ्रू एनर्जी पास ऑन होती है फ्रॉम वन पिगमेंट टू अनदर पिगमेंट, इसी का यूज करते हैं वो लोग। फोटो सिस्टम फिर से करूं, प्लीज आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुनो। देखो फोटो सिस्टम फोटो सिस्टम इज द यूनिट यू कैन से जो पूरा लाइट रिएक्शन करवा रही है। ओके उसमें कुछ पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। नाउ फोटो सिस्टम के अंदर जो पहला पार्ट मैं डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो लाइट रिएक्शन में सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, तो लाइट एब्जॉर्ब कौन करते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स भी करेंगे और एसेसरी पिगमेंट्स भी करेंगे। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट बनता होता है और आसपास प्रेजेंट है एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी पिगमेंट्स लाइट से एब्जॉर्ब कर रहे हैं और अल्टीमेटली उसे किसे दे रहे हैं, क्लोरोफिल ए को देते हैं। तो दैट इज व्हाई क्लोरोफिल ए इज द मेन सेंटर, क्लोरोफिल ए इज द रिएक्शन सेंटर, इट इज द मेन पिगमेंट। अंडरस्टूड? इस पूरे यूनिट को क्या बोलते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्ट करके अल्टीमेटली किसे दे रहे हैं, रिएक्शन सेंटर को दे रहे हैं, दैट इज क्लोरोफिल ए। ओके नाउ फोटो सिस्टम दो तरह के होते हैं, PS1 एंड PS2। फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, व्हाट इज द डिफरेंस? देखो फोटो सिस्टम 1 जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर पाता है वो कौन से पे, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इसका कहां पर है, 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पे। बट फोटो सिस्टम 2 का मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहां पर है, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ पे। दैट इज व्हाई PS1 is also known as P700 and PS2 is also known as P680. Are you able to understand now? Just go through this slide once. Are you able to understand everything which is written here? Please go through it. एब्जॉर्प्शन पीक मतलब उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन पीक मींस उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन। PS1 का 700 नैनोमीटर पे होगा और PS2 का 680 नैनोमीटर पे होगा। 650 दोनों में हो जाएगा ना, P680 वाला भी करेगा, 700 वाला भी करेगा, बट मोस्टली P680 वाला करेगा क्योंकि दैट इज क्लोजर। बट बिकॉज इट इज लेस देन P680 एंड 700, तो इट कैन बी एब्जॉर्ब। बट 680 से अगर ज्यादा आपकी लाइट आई तो PS2 एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, फिर PS1 ही एब्जॉर्ब करेगा।
Yes, both the system exists in the single leaf itself. In one chloroplast बहुत सारे एंटीना कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट हो सकते हैं. द नंबर कैन बी वेरी. क्वांटासोम का यूनिट हमने पढ़ा था 250 टू 400 क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट हो सकते हैं. कैन यू रिमेम्बर? डिफर करेगा स्पीशीज टू स्पीशीज. ध्रुव, यू कैन नॉट से 50% PS1 में एब्जॉर्ब होगा, 50% PS2 में एब्जॉर्ब होगा. दैट इज नॉट प्रैक्टिकल. वो नहीं बोल सकते हम. इट विल वेरी. वो कैसे होता है, कहाँ यूटिलाइजेशन होता है, कैसे होता है, अभी जब हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में, यू विल गेट टू नो. ध्रुव, स्टेप वाइज स्टेप हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. एक बार पूरा डिस्कस हो जाएगा ना तो माइंड में क्लियर हो जाएगा सब कुछ. ओके, जस्ट वेट टिल देन. यहां तक सब कुछ समझ में आया सब? इसके आगे का डिटेल हम लोग कल की क्लास में वी विल डिस्कस इट टुमारो. ओके. बच्चा अगर वेवलेंथ 700 नैनोमीटर से ज्यादा होगी तो वो तो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन के बाहर चला गया, वो अब्सॉर्ब भी नहीं होगा ना. उसका काम ही क्या है? इट वोंट बी एबल टू यूटिलाइज इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन हम लोगों ने कहां से कहां तक पढ़ा था? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. ओके, तो 400 टू 700 के बीच में जितनी भी वेवलेंथ आएंगी उसमें PS1 और PS2 एब्जॉर्ब कर रहा है. अब PS1 के अंदर जरूरी नहीं है सिर्फ क्लोरोफिल ही प्रेजेंट होगा, उसके अंदर बाकी पिगमेंट भी प्रेजेंट हो सकते हैं. प्लीज याद, ये फोटो सिस्टम देखो. फोटो सिस्टम में यहाँ पर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, बाकी पिगमेंट भी प्रेजेंट है. अब अलग अलग नैनोमीटर का वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग. 790 or 780 you can say to be very precise, but 400 to 700 याद रखोगे, that is okay till 10th standard. That is fine. Higher wavelength doesn't mean higher absorption. ऐसा कुछ नहीं है. प्लांट सिर्फ रेड लाइट नहीं, ब्लू लाइट भी एब्जॉर्ब करते हैं. हमने पढ़ा था ना, रेड और ब्लू लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है. Who is this? Is everyone able to hear me?
But one of the student was writing something in the chat. I just removed him. Sorry. Yes. So I think इतना आज के लिए काफी है. We will discuss the other part in next class tomorrow. अभी आप doubts पूछ सकते हो. You can ask the doubts. Please ask whatever doubts till now you have. Is every complex divided into PS1 and PS2 or every pigment? Every complex, हर हर कॉम्प्लेक्स के पास PS1 PS2 हो सकता है एंड उस PS1 और PS2 में क्लोरोफिल ए पिगमेंट भी होंगे और एसेसरी पिगमेंट्स भी होंगे. अगर लीफ को कट करोगे हाफ में तो वो फोटोसिंथेसिस जब तक परफॉर्म कर सकता है जब तक उसके पास वाटर का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा होगा. अगर उसके वेस्कुलर बंडल्स भी कट हो जाएंगे और वाटर रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होगा तो नहीं हो पाएगा. Rana, it is a तो रिड्यूस किया हम लोगों ने तो डेट इज सेम. डिफरेंस कहां पर आया? दोनों अलग क्यों हो गए? क्योंकि एक में CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है और दूसरे में CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है. दैट इज द मेन डिफरेंस.
सॉरी बच्चे, आई गॉट डिस्कनेक्टेड, नेटवर्क इशू। हाँ, तो डाउट्स अगर किसी को है तो प्लीज आस्क। राना, अभी हम लोग फोटोलाइसिस पे आए नहीं है। लेट मी कम ऑन टू दैट पॉइंट, देन वी विल डिस्कस द डाउट्स अबाउट इट। ओके, जो मिनिमम ग्रीन लाइट में हो सकता है, कुछ परसेंटेज हो सकता है, बट मैक्सिमली इट विल रिफ्लेक्ट ऑल द ग्रीन लाइट, मतलब मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करेगा। अनुष्का, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स ही तो बच्चा बना है इसका। This is all light harvesting complex only, na? Light harvesting complex has reaction center, that is chlorophyll A, and accessory pigments that can be chlorophyll B, C, D, E, carotene, xanthophyll. So light harvesting complex में reaction center आएगा और accessory pigment आएगा. Photosystem divided in two parts because एक photosystem पे maximum absorption 700 नैनोमीटर वेवलेंथ पे होता है, दूसरा फोटोसिस्टम 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे दिखाता है। दोनों फोटोसिस्टम रिक्वायर कभी होते हैं, कभी नहीं होते हैं। आपको अभी डिटेल में जब पढ़ाऊंगी देन इट विल बी क्लियर पार्ट्स, प्लीज वेट टिल देन। अभी GA3 अभी क्लियर हो जाएगा, केल्विन साइकिल जब हम डिस्कस करेंगे देन आई विल डिस्कस अबाउट इट। अभी उसको ग्लूकोज लेकर चलो, वहां पर ग्लूकोज लिख लो इफ यू हैव नोटेड इट डाउन। एक्सेसरी पिगमेंट्स बच्चा, एक्सेसरी पिगमेंट्स लेट डिस्कस ना, ये सब डिस्कस तो करा था, कैरोटीन और xanthophyll ये सब है, दीज आर एक्सेसरी पिगमेंट्स ओनली, जो लाइट एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को दे देंगे अल्टीमेटली, वो सब एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं। एंड एक्सेसरी पिगमेंट सब वहीं पर प्रेजेंट है, थायराकॉइड मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट है, क्लोरोफिल के आसपास ही प्रेजेंट है। ब्लू लाइट भी एब्जॉर्ब करेगा। ब्लू लाइट कौन पूछ रहा है बच्चा? ब्लू लाइट का रेंज होता है 380 टू 500 तक अराउंड, एंड 680 से जितना भी नीचे और 700 से जितनी भी नीचे वाली वेवलेंथ है वो तो एब्जॉर्ब कर ही रहा है ना, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, बोथ ऑफ देम आर एब्जॉर्बिंग, दोनों ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो 680 पे है, एक का 700 पे है, बट नीचे की जितनी भी नैनोमीटर की वेवलेंथ है वो सब एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो ब्लू लाइट भी एब्जॉर्ब हो रही है। How can accessory pigments transfer light? Do they make it into ATP or something else? बच्चा मैंने बताया था, there is a phenomena known as resonance transfer. Resonance transfer energy. It is a phenomena. आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, it is not in your course yet. Resonance phenomena. Resonance energy transfer. This is a phenomena जिसका यूटिलाइज करते हैं और वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। सबके जो एनर्जी लेवल है दैट इज डिफरेंट,
तो एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर एक फिनोमिना है, उसको यूज करके दे ट्रांसफर एनर्जी। Rana, photosynthesis cannot occur in dark because photosynthesis के लिए light is the actual requirement। भाई लाइट ही अगर नहीं हो रही है तो फिर डार्क में कैसे होगा? डार्क में सिर्फ डार्क रिएक्शन, अगर ऑलरेडी एटीपी और एनएडीपीएच बन गया है तो वो यूटिलाइज होके ग्लूकोज बन जाएगा। बट वो एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ बना होगा? वो तो लाइट में बना होगा ना। तो पूरा फोटोसिंथेसिस तो डार्क में नहीं हो सकता ना। दैट इज व्हाई इट इज सेड कि डार्क में नहीं होता है फोटोसिंथेसिस। डार्क रिएक्शन दिन में भी हो सकती है बच्चा, किसी भी टाइम हो सकती है। डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ रात में ही होगी, रात में भी हो सकती है। अभी हम लोग कुछ प्लांट्स पढ़ेंगे जिनमें देखेंगे कि पूरा केल्विन साइकिल जो डार्क रिएक्शन वाला पार्ट है वो रात में ही होता है। वी विल कम ऑन टू दैट पॉइंट। No, it is not like resonating structure in carbon structure बच्चा। रेजोनेंस एनर्जी डिपेंड करता है हाई एनर्जी और लो एनर्जी। एक डोनर की तरह एक्ट करता है और दूसरा एक्सेप्टर के अंदर। तो एक का क्या होता है कि एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अपना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करके दूसरे को पास ऑन करता है। इट इज समथिंग लाइक दैट। इसको थोड़ा रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर के लिए आना, so that we can go ahead with the next lecture. Okay then, bye bye.